Assalamu alaikum. I, Sadaf Siddiqui, MT Scholar, Department of Knowledge, Government Tibbi College and Hospital, prepared under the guidance of Dr. Mohammad Najibur Rahman, Assistant Professor, Department of Knowledge, GTCH. Today, my topic of presentation is comparative evaluation of Hamida Sandal Sada with Dawao Shifa in the management of Ziktuddam Kabi Ibtidai, an open label RCT. जब भी हम कोई टाइटल चूज करते हैं तो टाइटल जो भी हमारा रिसर्च का होना चाहिए बहुत एक्यूरेट और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। जैसे कि ये टाइटल है तो मेरी जो स्टडी है उसमें मैं कंपेरेटिव स्टडी कर रही हूँ हमीदा संदल सादा और दवाओ शिफा की जिक्तुद्दम कभी इब्तदाई को लेकर। एक इसमें जो मेरा स्टडी डिज़ाइन है वो ओपन लेवल आरसीटी। ओपन लेवल मीन्स जो रिसर्चर है और जो स्टडी पार्टिसिपेंट है दोनों को ही पता होता है कि हम उसे क्या इंटरवेंशन देने जा रहे हैं। आरसीटी मीन्स रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आरसीटी में जो रैंडमाइजेशन होता है उसको हार्ट ऑफ स्टडी कहा जाता है। और इसमें जो रैंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ले लेंगे, तो उसमें से भी हम ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं, उनको रैंडमली असाइन करते हैं। दो ग्रुप में, एक तो कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा स्टडी ग्रुप होता है। जैसे कि मैंने 60 पेशेंट्स लिए हैं तो 30 पेशेंट को मैं रैंडमली असाइन करूंगी खमीरा संदल सादा के लिए और 30 पेशेंट मैं असाइन करूंगी दवाओ शिफा के लिए, ताकि कोई भी बाइस क्रिएट ना हो। तो अब कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। नीड फॉर द स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, मटेरियल मेथड, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, inclusion criteria, exclusion criteria, withdrawal criteria, parameter of evaluation, drug dosage, route of administration and storage, investigation and finally references. तो ये स्टडी करने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी हाइपरटेंशन, उसका इंसिडेंस और मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया और यही दवा मैंने क्यों कंपैरेटिव स्टडी में ली है। तो hypertension refers to the persistent elevation of blood pressure in the systemic arterial circulation. It is one of the leading cause of the global burden of diseases, approximately 1 billion individuals, and causes an estimated 9.4 million deaths per year worldwide. Hypertension doubles the risk of cardiovascular diseases, including coronary heart disease, congestive heart failure, ischemic and hemorrhagic stroke, etc. 95% केसेस अगर हाइपरटेंशन के देखें तो वो इडियोपैथिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी कॉज नहीं मालूम है, तो उसको हमने टर्म दिया एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन। रिमेनिंग 5% जो बचता है उसका कोई ना कोई कॉज होता है, तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। There is a continuous relationship between the level of blood pressure and the risk of its complication. Both systolic and diastolic blood pressure have been associated with increased cardiovascular disease risk. Epidemiological data indicates that systolic blood pressure is far more important than diastolic blood pressure as a determinant of cardiovascular disease risk, except in younger age group. The management of hypertension is a difficult problem in day-to-day practice. In Western medicine, drugs are effective but costly and have various adverse effects. Looking at this, a need was felt to explore the hidden potential of certain potential of Unani medicine used for such conditions, which may prove more effective, safe, and with least adverse effect. To evaluate clinical efficacy of drugs in hypertension, Kurse Dawao Shifa, which contain Asrol and Filfilsia, compares with Khamira Sandal Sada, which contain Burada Sandal Safed, Shakar Safed, and Ab. So there is a need to provide efficacious but non-toxic drug for the management of hypertension. Keeping in view of above factors, it is intended to adopt a study entitled Comparative Evaluation of Khamira Sandal Sada with Dawao Shifa in the Management of Primary Hypertension, an open label RCT. रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो टर्म हाइपरटेंशन है या जिक्तुद्दम कभी क्लासिकल यूनानी लिटरेचर में मेंशन नहीं है, मगर जो सबसे पहले टर्म हाइपरटेंशन यूज किया था वो हैरी गोल्ड वैलेट ने किया था 1934। मगर जो क्लासिकल यूनानी स्कॉलर्स हैं हमारे, वो क्लिनिकल फीचर्स से इसके फेमिलियर थे या कॉजेज कॉम्प्लिकेशन से फेमिलियर थे, जो कि रिजेंबल उन्होंने किया था इम्तिला से, कि ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये सिर्फ इम्तिला की वजह से होते हैं।
ऑब्जेक्टिव जो है मेरी स्टडी का, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कोई भी स्टडी हम करने जा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए. इट मीन्स एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रिटेनेबल एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड. तो मेरी स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है वो टू इवेलुएट द एफिकेसी ऑफ खमीरा संदलसादा and its comparative study with Dawao Shifa in the management of essential hypertension. Number 2, to provide safe and cost-effective alternative treatment for hypertension. मटेरियल एंड मेथड में जो मैं डेटा का जो सोर्स है वो ओपीडी और आईपीडी ऑफ गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल. मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा जो होगा, सबसे पहले मैं पेशेंट को एनरोल करूंगी या तो ओपीडी और आईपीडी से. जब वो फॉलोइंग जो भी मेरा क्वालिफाइंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा उसके बाद ही मैं उनको एनरोल करूंगी अपनी स्टडी में. इंक्लूजन क्राइटेरिया है मेरी स्टडी का, क्लिनिकल डायग्नोस्ड पेशेंट ऑफ essential hypertension on 3 consecutive visits under optimal condition, patient of either gender, patient in the age group of 35 to 65 years, patient not taking any antihypertensive drug prior to state of treatment, clinically stable patient, those who give written consent. Exclusion criteria: patient of severe or malignant hypertension, patient of secondary hypertension, patient below 35 and above 65 years of age, pregnant women and lactating mothers, patient with unstable systemic disorder like liver, kidney and heart diseases, etc., chronically ill patients, patient of psychiatric disorder, smokers and alcoholics, patient who do not sign informed consent form, diabetic patient, immobile और bedridden patient को exclude कर दूंगी अपनी स्टडी से. Withdrawal criteria: right of the trial subject to withdraw consent at any time during the course of the study. If the subject not willing to continue, the cases in which adverse drug reaction is noticed, sudden increase in blood pressure more than 160 by 100 mm of Hg, any acute systemic illness during the treatment, drug intolerance, non-compliance with the study protocol. पैरामीटर्स ऑफ इवेलुएशन में सब्जेक्टिव पैरामीटर देखा जाए तो मैंने लिया है पेशेंट हैविंग सस्टेन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर विद और विदाउट हेडेक, गिडीनेस, breathlessness, palpitation, fatigue, disturbed sleep. ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे मैं ब्लड प्रेशर की रीडिंग रिकॉर्ड करूंगी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रीडिंग्स उसका कितना है, उसी से मेरा वो ऑब्जेक्टिव तैयार होगा. स्टडी डिजाइन मेरा है कंपैरेटिव आरसीटी ओपन लेवल, जैसे कि मैं पहला बता चुकी हूँ. सैंपल साइज मेरा टोटल पेशेंट 60 पेशेंट का है, जिसमें टेस्ट ग्रुप में 30 पेशेंट है और कंट्रोल ग्रुप में 30 पेशेंट्स हैं. ड्रग डोजेज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टोरेज. टेस्ट ड्रग जो है मेरी खमीरा संदलसादा 7 ग्राम विद वाटर ट्वाइस अ डे. स्टैंडर्ड ड्रग दवाओ शिफा 2 कैप्सूल एट बेड टाइम वंस अ डे विद नॉर्मल वाटर. डोजेज, ड्यूरेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये पहले बता चुकी हूँ मैं. स्टोरेज ऑफ ड्रग, ह्यूमिडिटी, सनलाइट एंड डायरेक्ट हीट से हमें अपनी दवा को बचाना है और डार्क, ड्राई और कूल प्लेसेस पे अपनी दवा को रखना है. ड्यूरेशन ऑफ स्टडी 18 मंथ है, जो कि अब तो नहीं मिल पाएगी हमको. फॉलो अप 0 डे, 15 डे, 30, 40, 45 और 60. इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं ये सारे इन्वेस्टिगेशन जैसे सीबीसी, वीडीएसआर, केएफटी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन आरएम, ईसीजी, ब्लड शुगर, ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कराऊंगी और स्टार्ट आफ्टर ट्रीटमेंट बेस्ड कराना है, ताकि देखें कि कोई एडवर्स इफेक्ट जो मैंने दवा दी है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है. ये लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस. थैंक यू. क्या कह रहे? वालेकुम अस्सलाम. आपका जो पर्पस है दवा के इस्तेमाल करने का, कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है या फिर हाइपरटेंशन को ठीक करना है? हाइपरटेंशन वैसे भी कंट्रोलेबल डिजीज है, ये तो हमको पता होना चाहिए क्योंकि इसका परमानेंट क्योर तो है नहीं. ठीक है. एनी क्वेश्चन?
मेरा सवाल है कि दोनों दवा में आपको ज्यादा इफेक्टिव कौन सी दवा लगी? देखिए यही तो मुझे काम करना है। कुर्से दवा और शिफा तो मार्केट में आ चुकी है, तो हमको उसका इफेक्ट पता है कि हाइपरटेंशन में अच्छा काम करती है। पर मेरा ये मानना है कि खमीरा संदल सादा जो उसके फंक्शंस है उसको मतलब सिम्टम को रिलीव करेगी। तो मैं अपनी दवा को देखूंगी कि जैसे कि मैंने खमीरा संदल सादा लिया है, मैं उसको ज्यादा इफेक्टिव करना चाह रही हूँ। तो जब मैं पेशेंट पे दूंगी तभी तो मुझे ये चीज पता चलेगी। मेरा हाइपोथेसिस यही है ना स्टडी का। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा सबसे सादा जो आप दे रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए तो चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। मैंने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि डायबिटिक पेशेंट को मुझे नहीं लेना है। और अगर थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत हम लोग दे सकते हैं खमीरा जात, तो डायबिटिक पेशेंट में ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि मीठी दवाएं हम नहीं दे सकते, मगर थोड़ा तो दे सकते हैं ना। थोड़ा तो दे सकते हैं मैम, लेकिन अगर ये खमीरा के साथ साथ अगर सिंपल जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल्स है संदर्भ से उस पे अगर काम किया जाता साइमल्टेनियसली देखो तो मेरी ज्यादा तो बेहतर यही, होता। हाँ मैं समझ रही हूँ, मगर मेरी यही था कि संदल का तुम्हारा ये कहने का मतलब मैं क्रूड फॉर्म में ले लेती, फिर उसे इस्तेमाल करवाती किसी फॉर्म में करके। पर अब इतना टाइम मेरे पास नहीं बचा है। जो प्रिपरेशन मेरे पास है तो मैं वही इस्तेमाल करूँगी। थैंक यू। हेलो, क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। आपने दो फॉर्म इस्तेमाल किया है, एक खमीरा संदल और दूसरा दवाओं से था। हाँ आप सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों? क्यों मेरी जब मैं आई थी तो मैंने यही सोचा था कि कंपैरेटिव स्टडी करने से ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि हमको तो पता है कुर्सी दवा शिफा उसके लिए चलती ही चलती है। और मैंने ये सोचा कि खमीरा संदल सादा के जो इफेक्ट है, यानी जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के सिम्टम को ये रिलीफ देगी। तो मैं अपनी ड्रग को ज़्यादा इफेक्टिव शो करूंगी इसमें, अगर ये हो पाया तो। ठीक है।